اور سب سے پہلے خبر کشمیر سے قومی سلامتی مشیر اجیت ڈوبھال نے آج جنوبی کشمیر کے انتہائی حساس مانے جانے والے علاقے شوپیاں کا دورہ کیا۔ ایک جانب جہاں وادی کشمیر میں کرفیو اور بندشیں عائد ہیں، تناؤ بھرے حالات ہیں، ایسے میں قومی سلامتی مشیر نے شوپیاں میں مقامی افراد سے ملاقات کی۔ ان تصویروں میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اجیت ڈوبھال مقامی افراد سے تبادلہ خیال کر رہے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، قومی سلامتی مشیر نے مقامی لوگوں کے ساتھ لنچ بھی کیا۔ اس دوران اجیت ڈوبھال نے سیکیورٹی فورسز سے بھی ملاقات کی، سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ واضح ہے کہ جموں کشمیر کو خصوصی پوزیشن فراہم کرنے والی آئین کی دفعہ 370 کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ ریاست کی 2 حصوں میں تقسیم کر دی گئی ہے۔ لداخ اور جموں کشمیر 2 علیحدہ یونین ٹیریٹریز بنائی گئی ہیں۔ بامبے ہائی کورٹ نے ممبئی اور مضافاتی علاقوں میں ہاؤسنگ سوسائٹی میں قربانی پر روک لگانے کے لیے ممبئی عظمیٰ میونسپل کارپوریشن اور انتظامیہ کو ہدایت دی ہے۔ ممبئی عظمیٰ میونسپل کارپوریشن کے لیڈران نے اس معاملے پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے بی ایم سی کے ذریعے بہتر سہولیات فراہم کرنے کا مطالبہ کیا۔ جہاں تک ممبئی ہائی کورٹ کا سوال ہے، ممبئی ہائی کورٹ نے جو ججمنٹ دیا ہے وہ ججمنٹ جو ہے سب کے لیے لاگو ہوتا ہے، لیکن جو کہا گیا ہے کہ بکرا جو ہے وہ سوسائٹیز میں نہیں کاٹنا چاہیے، اس کا کارن یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں صاف جو اس ماحول میں ہونا چاہیے اس کا تحت کہا گیا ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ مہانگر پالیکا کے پاس دیونار ایک جہاں پر سلاٹرنگ ہاؤس ہے وہاں پر بکرا جو ہے کاٹا جاتا ہے اور کئی جگہ پر لائسنس دیا گیا ہے، وہاں پر سلاٹر کر سکتے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جو آدیش دیا گیا ہے اس کو کہیں نہ کہیں سب کو مانیہ کرنا چاہیے، ایسا میں سمجھتا ہوں۔ ہائی کورٹ نے جو نردیش دیے ہیں وہ سب کو ماننے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کو فائن پرنٹ میں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ وہ آرڈر جو ہے اس کے بیسس پہ مہانگر پالیکا نے ایک پالیسی بنائی ہے، جس طرح سے ایک واتاورن بنایا جا رہا ہے کہ لوگ گھر میں قربانی کرتے ہیں، اپنے گھر کے اندر کرتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ کامن پلیس پہ وہاں پر سب سویدھا کر کے، پانی کی، صفائی کی، پردہ لگا کے تبھی قربانی ہوتی ہے۔ تو یہ جو واتاورن بنایا جا رہا ہے کہ قربانی جو ہے گھر میں کی جاتی ہے، ایسے کی جاتی ہے، ویسے کی جاتی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کورٹ نے جو کہا ہے وہی پدت سے آلریڈی کام چل رہا ہے۔ تھوڑے سے اتی شرطی یعنی کہ کچھ ٹرمز لگائے گئے ہیں، وہ لوگ فالو کریں گے، اور ناگرک خود چاہتے ہیں کہ بھئی صفائی رہے، ہیومن طریقے سے ہو، تو اس میں مجھے نہیں لگتا کوئی بڑا ایشو ہے۔ پالیسی جو بنائی گئی ہے وہ لوگ فالو کریں گے۔ قربانی کے وشے کے اوپر ماننیہ جو کورٹ نے آدیش دیے ہوئے ہیں، وہ آدیش کو دیکھتے ہوئے مہانگر پالیکا نے جو سوچا تھا اور جس طرح سے آج ہمارے ایبوٹ جو ہماری پشووت گرہ جو ہے وہاں کی جو کام کرنے کا یعنی جس طرح سے فنڈ دیا ہوا ہے اس کو اچھی طرح سے بنانے کے لیے اس کے پیچھے یہی مقصد تھا کہ جو بھی قربانیاں جہاں جہاں ہوتی ہے وہ اگر وہاں ہوتی ہے تو وہ اچھا رہے گا، کیونکہ ہر بھلے ہمارے مسلم بھائی کی رہنے کی سوسائٹی بھی رہے گی تو بھی وہاں بھی اگر قربانی ہوتی ہے تو وہاں کے کچھ لوگ ہی اس کے اوپر آبجیکشن لے لیتے ہیں، بولتے ہیں کہ یہاں نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ سب دیکھتے ہوئے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس کا ویرودھ بھی کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اس کے خلاف اپلیکیشن بھی دیے ہوئے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں یہ مت کرو، بلکہ یہ کہیں نہ کہیں تو اس کے اسپاٹ آپ فکس کرو جس کی وجہ سے یہ قربانیاں وہاں ہو اور وہاں سے قربانی ہونے کے بعد میں کسی کو تکلیف بھی نہ ہو۔ اور ممبئی میں ہاؤسنگ سوسائٹیز اور عام جگہوں پر قربانی پر پابندی سے متعلق بامبے ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ معروف وکیل اعجاز نقوی بامبے ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ ہمارے نمائندے محی الدین نے ایڈوکیٹ اعجاز نقوی سے اس معاملے پر خاص بات چیت کی۔ میں یہ بتاتا ہوں، آرڈر 2 طریقے کے ہیں، 2 ہیں، 2 الگ الگ پٹیشنز فائل ہوئی ہیں۔ ایک پٹیشن میں آرڈر یہ ہوا ہے کہ ذبح جو ہے کوئی بھی کہیں پر بھی نہیں کر سکتا ہے، یہ میونسپل کارپوریشن کے رولز ریگولیشنز کے تحت ہی ہوتا ہے، اور یہ کسی جگہ پر ہی ہوتا ہے جیسے ایبٹوائر ہے، جیسے سلاٹر ہاؤس ہے، یا پھر ایسی نان ویج مارکیٹس ہے جہاں پر پرمیسیبل ہو کہ آپ وہاں پر خسی یعنی بکرا، بکری یا مرغی وغیرہ کاٹ سکتے ہیں یا سلاٹر کر سکتے ہیں، تو وہاں پر پرمیشن ہوئی۔ دوسرا ایک جو پٹیشن آئی ہوئی تھی کہ اینیملز کروئلٹی ہوتی ہے اس میں، اور
अनहाइजेनिक वे में इसको हैंडल किया जाता है, गंदगी से इसमें होती है, इसमें गलाजत होती है, उसमें भी एक ऑर्डर्स हुआ कि पुलिस को डायरेक्शन दिया गया है बीएमसी को कि कहीं पर कोई भी बेचना, खरीद फरोख्त करता या किसी भी चेक पॉइंट्स पर कोई भी बकरी दिखने नहीं चाहिए, जो भी दिखे वो प्रॉपर परमिशन से ही मुंबई लिमिट्स में इंटर करें। तो इस ऑर्डर को जो है आप चैलेंज करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट में। अब इन ऑर्डर्स को, लिहाजा ये ऑर्डर्स बिल्कुल बेसिक चीज जो मुसलमान समाज के लोग पिछले 1400 ईस्वी से मानते आए हैं, साल में एक बार कुर्बानी देते हैं, वो सिंबॉलिक कुर्बानी उनकी रिलीजियस फेथ से जुड़ी हुई है मुसलमानों की, उसको दरकिनार करना और उसको कॉमन वे में, नॉर्मल वे में लेना, कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन जो उनका रिलीजियस प्रोटेक्शन है, एक तो वो हट रहा है। दूसरा ये है कि उसका मैनेजमेंट करने के लिए गाइडलाइंस इशू न करके कई और ऑर्डर्स दे देना। तो हम ये चाहते हैं कि एक तो इसको जो रिलीजियस प्रोटेक्शन दिया गया है, ऐसी बलि जिसको कहें, कुर्बानी कहें, स्लॉटर कहें या जो भी कहें, लेकिन कहीं ना कहीं इसका रिलीजियस बैकग्राउंड है और इस वजह से इसको रिलीजियसली जो है ही एंगल से देखना चाहिए, क्योंकि लोग फेथ के बिना पर ही ऐसे ही कुर्बानियां देते हैं और साल में एक बार ही देते हैं। तो दूसरी चीज ये है कि इसके साथ में जो गाइडलाइंस सरकार को देनी चाहिए थी, जिससे कि कई और सुविधा हो, फैसिलिटेट हो जाए ये कुर्बानियों में और दिक्कतें दूर हो जाए, वो हाईकोर्ट ने करने में थोड़ा सा ऐसा लगा है कि उस तरफ उनका गया ही नहीं है, उस तरफ रुझान ही नहीं गया है या उस तरफ किसी ने अर्जी नहीं किया है। आप चाहते क्या है, मतलब आप अपनी पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट में क्या चाहेंगे? अब महाराष्ट्र के वज़ीर-ए-आला देवेंद्र फडणवीस ने अकोला जिले में महाजनादेश यात्रा करके अपनी हुकूमत की कारकर्दगी पर रोशनी डाली। साथ ही किसानों को इमदाद पहुंचाने के अलावा अकोला में एयरपोर्ट सर्विस शुरू करने का भी यकीन दिलाया। एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र में आइंदा चंद महीनों में असेंबली इंतखाबात को देखते हुए महाराष्ट्र के वज़ीर-ए-आला देवेंद्र फडणवीस ने महाजनादेश यात्रा की शुरुआत की, जिसके लिए फडणवीस ने 2 रोज के लिए अकोला जिले का प्रोग्राम बनाया। अकोला जिले के बोरगांव से सीएम ने रैली का आगाज किया। इस दौरान सैकड़ों की तादाद में बीजेपी कारकुनान ने फडणवीस का खैर मकदम किया। इस दौरान फडणवीस ने सबसे ज्यादा किसानों की मदद करने की बात कही। काळजी करू नका, मोदीजींच्या नेतृत्वामध्ये आता विमानतळ याकरता विस्तारित होत आहे की एकीकडे विमानतळाचा विस्तार झाला की उद्योग येतात, जिथे विमान उतरतं तिथेच उद्योजक जातो, आणि दुसरीकडे मोदीजींनी एक नवीन स्वप्न पाहिलंय आणि या एअरपोर्टचं एक्सपान्शन देखील आपण निश्चितपणे करू। अकोला के क्रिकेट क्लब ग्राउंड पर मुनक्किदा इजलास में फडणवीस ने कांग्रेस और एनसीपी को भी जमकर तनकीद का निशाना बनाया। साथ ही गुज़िश्ता 5 वर्षों में अपनी हुकूमत की कारकर्दगी पर भी रोशनी डाली। फडणवीस ने अकोला में बहुत जल्द एयरपोर्ट शुरू करने का यकीन दिलाया। आज बघा 15 वर्ष काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसचं सरकार या महाराष्ट्रामध्ये होतं। 15 वर्षामध्ये महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्याच्या खात्यात त्यांनी 20,000 कोटी रुपये दिले। 15 वर्षात 20,000 कोटी म्हणजे वर्षाला 1200 कोटी आपण 5 वर्षामध्ये शेतकऱ्याच्या खात्यामध्ये 50,000 कोटी रुपये दिले। अकोला के बाद सीएम बालापुर और शिगांव जैसे मुख्तलिफ शहरों में भी रैलियां करने वाले थे, ताहम सिक्योरिटी की इमरजेंसी मीटिंग और दीगर वजूहात की बिना पर उनकी बकिया रैलियां मंसूख कर दी गयी। सीएम के इस दौरे को बीजेपी ने कामयाब करार दिया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अकोला से रिजवान खान की रिपोर्ट। दोपहर 2:30 बजे के करीब वर्कशॉप पर वाक़े महाराष्ट्र बैंक के सामने 2 स्कूटी गाड़ियों पर 2 लावारिस बैग मिले। मकामी लोगों ने जब ये लावारिस बैग देखे तो उन्हें शुबा हुआ कि कहीं इनमें कोई धमाकेखेज मादा तो नहीं। इस दौरान यहाँ ये भी अफवाह फैल गई कि इनमें धमाकेखेज अशिया रखी गई है। इस अफवाह के फैलते ही कुछ देर के लिए वहाँ अफरा तफरी का माहौल जरूर देखा गया। फौरी तौर पर इसकी इत्तला पुलिस को दी गई। पुलिस के बम डिस्पोजेबल स्क्वाड ने जाए मुकाम का दौरा किया। इस बैग को वहां से जब्त करके आशना ब्रिज के पास ले गए। वहां इसकी तलाशी ली गई। तलाशी में पुलिस ने पाया कि सूटकेस में कपड़े, बैग में कागजात बरामद हुए हैं। पुलिस का अंदाजा है कि ये सामान किसी सेल्समैन का है। आगे बढ़ेंगे। नागपुर में नशे की हालत में एक पुलिस एहलकार की वीडियो वायरल हो गई। मोटरसाइकिल पर सवार
ये पुलिस का जवान नशे में धुत है। नशे में होने की वजह से ये सड़क पर गिर गया। पुलिस वाले का नाम शांताराम बताया जाता है, जो कि नागपुर के पुलिस हेडक्वार्टर पर ड्यूटी पर तैनात है। वो देखो कैसे हिल रहा, वो देखो, वो गिरा, वो गिरा, वो गिरा, ये देखो, ये देखो, ये गिरा, ये देखो। स्कूल बसों में गैर तजुर्बेकार ड्राइवर्स की भर्ती किए जाने से सड़क हादसा पेश आ रहे हैं। इनमें इजाफा देखा जा रहा है और इसमें तलबा की ही जाने जा रही हैं। इस मसले के हल के लिए नांदेड़ में ट्रैफिक पुलिस इंतजामिया ने खुसूसी जांच मुहिम शुरू की। इस मुहिम के तहत शहर की तमाम स्कूल बसों की जांच की जा रही है और इस काम के लिए ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर चंद्रशेखर कदम ने 4 दस्ते भी तश्कील दिए हैं। जांच मुहिम के दौरान कई मामले ऐसे भी सामने आए जिनमें गाड़ी के कागजात मुकम्मल नहीं थे, जबकि कई मुकामात पर ना तजुर्बेकार ड्राइवर भी अपनी खिदमत अंजाम देते नजर आए। ट्रैफिक पुलिस एहलकार मुताल्लिका अफराद के खिलाफ जुर्माना भी आयद कर रहे हैं। अब तक 80 से ज्यादा बसों की जांच कर ली गई है। हाल ही में महाराष्ट्र में मराठा रिजर्वेशन मिलने पर पूरी रियासत में जमकर जश्न मनाया गया। इस दौरान दीगर तबकात की जानिब से इसकी मुखालफत नहीं की गई, क्योंकि हर किसी को यही लगने लगा था कि मराठा रिजर्वेशन से दीगर तबकात को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मराठा रिजर्वेशन का नाम लिए बगैर मौजूदा रिजर्वेशन में इजाफे की मुखालफत की जा रही है। किसी भी समाज के प्रति, किसी भी धर्म के प्रति, किसी भी जाति के प्रति कोई विरोध नहीं है। जिन्हें जो मिला है उससे वो सरकार की नीति है। हम भी सरकार से ये बोलते हैं कि जो ओपन कैटेगरी के 50% लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं उनके मेरिट को कहीं ना कहीं संरक्षण मिलना है। ओपन तबकात की जानिब से रिजर्वेशन को 50% तक महदूद करने का मुतालबा किया जा रहा है। इस सिलसिले में अकोला में ओपन कैटेगरी में शामिल लोगों ने जमकर एहतजाज किया। इस दौरान मुसलमानों की जानिब से भी कुछ तंजीमों ने इस एहतजाज की हिमायत की। 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन किया है, जिसकी वजह से अक़लियती तबके को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और इसकी वजह से खासतौर से वो बच्चे जो अक़लियती तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, जो ज़हीन है और जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन वो मुतवस्सित तबके से आते हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो कैपिटेशन फीस से कहीं एडमिशन ले सकें। तो ये सरासर नाइंसाफ़ी है उन लोगों के लिए जो कि मेरिट के तौर पर आना चाहते हैं। इस एहतजाज में सिंधी और मारवाड़ी समाज के लोग बड़े पैमाने पर सामने आए, जबकि मेमन जमात और सुन्नी यूथ फोर्स के नुमाइंदों ने भी इस एहतजाज में हिस्सा लेकर मुसलमानों की नुमाइंदगी दर्ज करने की कोशिश की। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अकोला से रिजवान खान की रिपोर्ट। मोदी हुकूमत ने कश्मीर से मुताल्लिक दफ़ा 370 मनसूख करने का जो फैसला लिया, उसके खिलाफ अब अवामी सतह पर आवाज़ें उठने लगी हैं। नांदेड़ में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से जिला कलेक्टर के दफ्तर के सामने एहतजाजी धरना दिया गया। मुजाहिरीन ने कश्मीरियों के साथ की जा रही एकतरफा कार्रवाइयों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की और मोदी हुकूमत के खिलाफ बरहमी का इजहार किया। मोदी हुकूमत पर ताकत का गलत इस्तेमाल करने और गैर दस्तूरी फैसला लेने का भी इल्ज़ाम लगाया और जल्द से जल्द इस फैसले को वापस लेने का मुतालबा किया। एहतजाजी मुजाहरे में कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। एक तरफ अपने देश में बेरोजगारी की संख्या बढ़ चुकी है, बेरोजगार को रोजगार उपलब्ध नहीं है और हमारी आशा वर्कर जो है CITU के एफिलेटेड मेंबर है, उनकी 18,000 रुपये किमान वेतन की डिमांड बहुत सालों से उस डिमांड के तरफ नज़रअंदाज करते हुए मोदी सरकार ने जो निर्णय लिया वो निर्णय का हम निषेध करते हुए यहाँ पे एक हमारी मुख्य डिमांड है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की डिमांड है कि अगर अपने देश में राज्य घटना और लोकशाही का पालन करना है तो भारत के जनता को विश्वास में लेके जो भी आपको निर्णय लेना है, जो भी कानून नया बनाना है या जो भी रद्द करना है, ये पहले करना चाहिए। ऐसी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की मांग है। अवामी मुकामात पर शीरख्वार बच्चों को दूध पिलाना किसी भी माँ के लिए दुश्वार कुन मरहला होता है, लेकिन अब ऐसी माँओं को फिक्रमंद होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि अवामी मुकामात पर ऐसे गहवारा अतफाल बनाए जा रहे हैं जो कि माँओं और उनके नौनिहालों दोनों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। और इसकी शुरुआत हो गई है औरंगाबाद के घाटी अस्पताल से। खास रिपोर्ट। औरंगाबाद का घाटी दवाखाना मराठवाड़ा रीजन का सबसे बड़ा अस्पताल माना जाता है। इस अस्पताल में सैकड़ों की तादाद में मरीज इलाज के गरज से आते हैं, जिनमें अक्सरियत गरीब, दलितों और मुसलमानों की होती है। घाटी दवाखाना में आने वाले इन मरीजों और इनके रिश्तेदारों, खासकर नवजादा बच्चों की माओं के लिए गहवारा इत्फाल बनाया गया है, जहाँ माएँ
बिला किसी खौफ और झिझक के अपने शीरख्वार बच्चों को पुरसकून माहौल में दूध पिला सकती हैं। घाटी दवाखाने के डीन के हाथों इस सेक्शन का इफ्तिताह अमल में आया। ओपीडी में जब पेशेंट्स आते हैं उनके साथ बच्चे भी रहते हैं, और जब बच्चे होते हैं तो उनको दूध पिलाने के लिए एक अच्छी जगह मिलनी चाहिए जहाँ पे वो बच्चों को एक हैप्पीली एटमॉस्फेयर पे उसको बच्चों को दूध पिला सकती है। इसलिए आज औरंगाबाद के ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रिकॉर्डिंग कक्ष का ओपनिंग हुआ है। पब्लिक प्लेस में कि जैसे जहाँ भीड़ होती है और कोई माता को अपने बच्चों को दूध पिलाना है तो उसे एक प्राइवेसी होनी चाहिए, और वो प्राइवेसी एक रूम के दरमियान हमने उपलब्ध कर दी है जहाँ की कम से कम 4 माता एक टाइम बैठ सकती है। घाटी दवाखाने में ये सहूलत ब्रेस्ट फीडिंग वीक के तहत अरमान नामी फलाई तंजीम और मेडिकल इंतजामिया के इश्तराक से फराहम की गई है। अरमान तंजीम के जिम्मेदारों का कहना है कि इस सहूलत को शहर के तमाम अवामी मुकामात पर फराहम करने की कोशिश की जा रही है। मूवमेंट है, इस मूवमेंट में हर अकेले की कोई हो नहीं सकता, इसलिए सब लोग जिस तरह से इकट्ठा हो गए, हर कोई अपने तरफ से हेल्प करेगा ताकि जो बच्चा है उसका पहला राइट्स है कि उसको माँ का दूध मिलना चाहिए, और माँ का कर्तव्य भी है बच्चों को दूध पिलाना चाहिए। लेकिन वो कब दे पाएंगी, जब हम सबको उसको एक सपोर्ट करेंगे तभी दे पाएंगे। ये बहुत अच्छी सहूलत है, सरकार ने बहुत अच्छे करके दिए है, करना ही चाहिए ऐसा, नहीं तो बाज़ वक्त लोग कैसे रहते हैं, कैसे चलते हैं, कैसी निगाह से देखते हैं माँ को बच्चे को दूध पीते हुए, लेकिन ये बहुत अच्छा किया है सरकार ने, हम बहुत खुश हैं इससे। अवामी मुकामात पर गहवारा इत्फाल के क़याम पर ख्वातीन की तरफ से काफी मुस्बत रद्द अमल सामने आया है। औरंगाबाद में मुस्तकबिल में दूध बैंक कायम करने पर भी गौर किया जा रहा है। इस बात की जानकारी मेडिकल डीन ने दी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। और अब खास बात कर्नाटक की खबरें। सबसे पहले सुर्खियां। कर्नाटक में काबीना की तश्कील पर सबकी निगाहें मरकूज। येडियुरप्पा ने 25 जून को वज़ीर आला का लिया था हलफ। गुज़िश्ता 10 दिनों से वन मैन आर्मी के तौर पर कर रहे हैं काम। कर्नाटक में टीपू जयंती को रद्द करने का मामला। टीपू सुल्तान यूनाइटेड फ्रंट ने रियासती हुकूमत के फैसले के खिलाफ अदालत से रुजू होने का किया ऐलान। कर्नाटक में सैलाब की सूरत हाल खतरनाक। 15 अजला के लिए 3 दिनों के लिए जारी किया गया रेड अलर्ट। कल सीएम येडियुरप्पा बेलगाम की सूरत हाल का लेंगे जायजा। और एसडीपीआई ने गुलबर्गा डीसी ऑफिस पर किया एहतजाज। औकाफी इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रियासती हुकूमत से इक़दामात का किया मुतालबा। काबिज़ीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का भी मुतालबा। रायचूर के गवर्नमेंट उर्दू मीडियम बॉयज़ हाई स्कूल को तारीखी विरसे का दर्जा। तारीखी विरसे का दर्जा हासिल होने पर मुहिब्बान उर्दू में खुशी की लहर। निज़ाम हुक्मरान मीर उस्मान अली खान के दौर में कायम किया गया था ये स्कूल। कर्नाटक में सैलाब की सूरत हाल खतरनाक रुख इख्तियार करती जा रही है। रियासती हुकूमत ने कम से कम 15 अजला के लिए 3 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। आज भी कम से कम 2 अफराद की हलाकत की खबर है। शुमाली कर्नाटक के अजला बेलगाम, बागलकोट, बीजापुर, रायचूर, साहिली कर्नाटक के उत्तर कन्नडा और दक्षिण कन्नडा के अलावा पहाड़ी इलाके शिमोगा और चिकमंगलूर भारी बारिश से सख्त मुतासिर हैं। सेंट्रल वाटर कमीशन ने जिला बेलगाम की दूधगंगा नदी के अतराफ और अकनाफ के इलाकों के लिए एक्सट्रीम फ्लड अलर्ट जारी कर दिया है। दूधगंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और हालात की संगीनी को देखते हुए इंडियन आर्मी और एनडीआरएफ के दस्तों को राहत और बचाव इक़दामात के लिए बेलगाम, रायचूर और बागलकोट में तैनात कर दिया गया है। दूसरी जानिब सैलाब की संगीन सूरत हाल को देखते हुए वज़ीर आला बीएस येडियुरप्पा ने अपना दौरा दिल्ली मुख्तसर करते हुए बेंगलुरु वापस लौट आए। येडियुरप्पा कल 8 अगस्त को बेलगाम का दौरा करके सूरत हाल का जायजा लेंगे। वहीं बेलगाम जिला इंतजामिया ने 10 अगस्त तक तालीमी इदारों को छुट्टी देने का भी ऐलान कर दिया है। कर्नाटक में काबीना की तश्कील का मामला आइंदा हफ्ते तक के लिए मुलतवी होने का इम्कान है। पार्टी की सीनियर लीडर साबिक़ वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज के इंतकाल के पेश नज़र ये मामला आइंदा हफ्ते तक के लिए टलता नजर आ रहा है। येडियुरप्पा की आज पार्टी सदर अमित शाह से मुलाकात होना थी, लेकिन सुषमा स्वराज के इंतकाल की वजह से इस मीटिंग को आइंदा हफ्ते तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। बताया जाता है कि सोग की वजह से पार्टी हाईकमान कोई भी तकरीब जल्दी में मुनक़िद करने के हक़ में नहीं है। ऐसे में माना यही जा रहा है कि येडियुरप्पा आइंदा हफ्ते एक बार फिर दिल्ली का दौरा करके उम्मीदवारों के नामों की मंजूरी लेंगे।
कैबिनेट की तश्कील के लिए येडियूरप्पा को पार्टी के दाखिली दबाव के साथ साथ अपोजिशन का भी काफी दबाव है। कर्नाटक के नए वज़ीर आला BS येडियूरप्पा के सामने तश्कील हुकूमत के बाद काबीना की तश्कील सबसे बड़ा चैलेंज है। गुजरते वक्त के साथ उम्मीदवारों ने लॉबिंग भी तेज कर दी है। एक रिपोर्ट। कैसी होगी येडियूरप्पा की काबीना? पहले मरहले में कितनी रुकनी होगी काबीना? कितने होंगे डिप्टी सीएम, होंगे भी या नहीं? किसको मिलेंगे होम, फाइनेंस, PWD और दीगर अहम कलमदान? बागियों को इनाम के तौर पर क्या दिया जाएगा? कौन सी कम्युनिटी को इक़्तिदार में कितनी मिलेगी हिस्सेदारी? ताकतवर लिंगायत तबके से कितने होंगे वजीर? ऐसे कई सवाल हैं जो कर्नाटक की सियासत में मौजूद बहस बने हुए हैं। इसको सुलझाने के लिए बेंगलुरु और दिल्ली में गुज़िश्ता 10 दिनों से माथापच्ची जारी है। बीजेपी के पास 105 MLAs हैं। इसके अलावा कई सीनियर MLAs भी कतार में हैं। इन सबको खुश करने के इसमें तो मुमकिन नहीं है कि उनकी 33 काबीना भरती, जबकि बताया जा रहा है बासों जराये से कि 60 दावेदार हैं इसे। येडियूरप्पा ने खुद कहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में 50 की लिस्ट भेजी गई है। अभी इसमें इंतखाब करना है। फिर इसका सवाल ये है कि सेंट्रल जो बीजेपी कायदीन, मरकजी कायदीन है, वो टीम ये सोच रही है कि ऐसे लोगों को ही मिनिस्ट्री दी जाए जिसका सियासी पस मंजर RSS से हो। काबीना के इंतखाब में जात पात और इलाके को मलहूज रखना भी येडियूरप्पा के लिए चैलेंज बना हुआ है। 105 MLAs में इस बार 60 MLAs शुमाली कर्नाटक से हैं, जिनमें बेशतर लिंगायत हैं। इसके अलावा बेंगलुरु से भी कम से कम 6 MLAs विजारत के मजबूत दावेदार हैं। जराये के मुताबिक येडियूरप्पा के एडवांस एज की वजह से पार्टी हाई कमान कर्नाटक में कम से कम 2 डिप्टी सीएम रखना चाहती है। ताहम येडियूरप्पा इसको मुतवाज़ी इक़्तिदार करार देकर मुस्तरद कर रहे हैं। इस कास्ट कॉम्बिनेशन जिसमें लिंगायत है और वो चाहेंगे कि कलिगा को भी पोजीशन मिले ताकि वो आने वाले दिनों में JDS को कमज़ोर कर सकें। फिर वो ब्राह्मणों का ख्याल करना पड़ेगा, फिर इसी तरह दूसरे दलित्स का ख्याल करना पड़ेगा। इसके अलावा उनके सामने एक बड़ा चैलेंज एरिया और रीजन को लेकर है। कोस्टल रीजन में उनको काफ़ी कामयाबी मिली है, तो कोस्टल रीजन से उनको बैलेंस करना पड़ेगा। फिर इसी तरह उनका जो मलनाड एरिया है वहाँ से कुछ लोगों को लेना पड़ेगा। नॉर्थ कर्नाटका में पार्लिमानी इलेक्शन में गैर मामूली कामयाबी हासिल हुई, तो नॉर्थ कर्नाटका से रिप्रेजेंटेशन चाहिए। कैबिनेट की तश्कील में ताख़ीर से ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि बीजेपी हाईकमान येडियूरप्पा को फ्री हैंड नहीं दे रही है। 2013 में मोदी और शाह की जोड़ी कौमी सतह पर नमूदार होने से कबल येडियूरप्पा कर्नाटक में वन मैन शो या वन मैन आर्मी थे, लेकिन हाल ही में जिस तरह से तब्दीलियाँ आई हैं, KG बोपैया को जिस तरह से बीजेपी हाईकमान ने मुस्तरद कर दिया, इससे बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई है। कैबिनेट बनेगी वो सिर्फ बीजेपी हाईकमान की मंजूर शुदा होगी। येडियूरप्पा का उसमें कोई ख़ास अमल दखल नहीं होगा। न्यूज़ 18 उर्दू, गुलबर्गा, जवाद मीर। कर्नाटक में टीपू जयंती को रद्द करने के फैसले को लेकर बेंगलुरु में टीपू सुल्तान यूनाइटेड फ्रंट ने फैसले के खिलाफ अदालत से रुजू होने का फैसला कर लिया है। फ्रंट के सदर सरदार अहमद कुरैशी ने बयान देते हुए कहा कि हुकूमत के इक़दाम को अदालत में चैलेंज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस हवाले से साबिक़ एडवोकेट जनरल रवि वर्मा के जरिए अर्ज़दार दाखिल की जाएगी। उन्होंने कई सवालात खड़े किए कि किसी शख्सियत के जन्मदिन को मनाने का हुक्मनामा रद्द किया कैसे किया जा सकता है, किस बुनियाद पर हुकूमत ने टीपू जयंती को रद्द करने का फैसला लिया। कर्नाटक हुकूमत ने रायचूर शहर की एक उर्दू मीडियम हाई स्कूल को तारीखी विरसे का दर्जा दे दिया है। इस सिलसिले में महकमा तालीमात की जानिब से एक मकतूब भी जारी कर दिया गया है। आपको बताएं कि ये स्कूल सल्तनत आसफिया में कायम किया गया था। तारीखी विरसे का दर्जा हासिल होने पर साबिक़ तलबा और उर्दू हल्कों में मसरत की लहर देखी जा रही है। तो आप देखिए ये रिपोर्ट। मुझे इजाज़त दें। आदाब। कर्नाटक के रायचूर में वाक़या इस उर्दू मीडियम स्कूल को अभी मदरसा फौकानिया के नाम से जाना जाता है। निज़ाम हुक्मरान मीर उस्मान अली खान के दौर में मदरसा फौकानिया उस्मानिया के नाम से ये स्कूल कायम किया गया था। बताया जाता है कि आज़ादी के बाद स्कूल का नाम तब्दील करके मल्टीपर्पज़ स्कूल रखा गया। चंद दहाकों पहले ये स्कूल गवर्नमेंट उर्दू मीडियम बॉयज हाई स्कूल हो गया। वाज़ेह रहे कि कर्नाटक हुकूमत ने रियासत के बाज़ स्कूलों को तारीखी विरसे का दर्जा दे रही है, जिनमें रायचूर का गवर्नमेंट उर्दू मीडियम बॉयज हाई स्कूल भी शामिल है। यहाँ से कई सरकर्दा शख्सियात
दानिश्वरों, शायरों और अदीबों ने तालीम हासिल की। काबिल जिक्र बात यह है कि एक दौर में जिला के दूर दराज इलाकों से तालीम हासिल करने के लिए तलबा मदरसा फौकानिया आया करते थे। यहाँ से तालीम हासिल करने वालों में साबिक वजीर नजीर अहमद सिद्दीकी, साबिक राज्य सभा रुकन अब्दुल समद सिद्दीकी, साबिक रुकन असेंबली सैयद यासीन, रिटायर्ड स्पेशल डिप्टी कमिश्नर कैसर रज़ाक, औरंगाबाद के मारूफ सहाफी मुख्तार जैदी, शायर नाजिम खलीली, रिटायर्ड तहसीलदार सुल्तान अख्तर, NM अकबर मोहिउद्दीन, मारूफ नक़ाद प्रोफेसर वहीद वाजिद, माहिर माशियात प्रोफेसर इकबाल अहमद सिद्दीकी, माहिर तालीम शरीफ अनवर, रिटायर्ड वक्फ ऑफिसर और उर्दू अखबार आफ्ताब दक्कन के एडिटर SK हुसैनी अफसर के अलावा दीगर शामिल हैं, क्योंकि उस वक्त पूरे जिला में ये वाहिद उर्दू मीडियम हाई स्कूल था। तारीखी विरसे का दर्जा हासिल होने पर उर्दू के टीचरों, साबिक तलबा और मुहिब्बान उर्दू में खुशी की लहर देखी जा रही है। हमें ये इत्तला देते हुए बड़ी पुरमसरत हो रही है कि हमारा गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल हुकूमत कर्नाटक की जानिब से तारीखी विरसे के तौर पर शामिल किया गया है। इस ज़िमन में यहाँ पर हमारे मदरसे गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल में कई प्रोग्राम्स मुनक़िद किए जा रहे हैं। स्कूल को तारीखी जो है इसमें शामिल किया गया है, बड़ी खुशी की बात है। इस स्कूल के असातिज़ा इतने अच्छे थे उस दौर के, जो अपना सिलेबस मुकम्मिल कर भी है ना रिवीजन पढ़ाते थे, जिसमें एक नाम है मोहम्मद अहमद मतीनुद्दीन कुरैशी साहब। साइंस, हिसाब और जो है अंग्रेज़ी पढ़ाते थे। बहुत अच्छी तालीम हुई है। यहाँ के साबिक़ा असातिज़ा भी बहुत अच्छे थे। साबिक़ा वज़रा भी बने हैं, साबिक़ा MLA और साबिक़ा रुकन पार्लिमान भी इस स्कूल से बने हैं। इसके अलावा कई डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, KS अफसर भी इस स्कूल से बने हैं। 100 साल से जायद अरसा पूरा होने और स्कूल को तारीखी दर्जा हासिल होने पर स्कूल की जानिब से एक खुसूसी तकरीब मुनक़िद करने का भी फैसला किया गया है। तकरीब में साबिक तलबा हिस्सा लेंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए कर्नाटक के रायचूर से सैयद नसीम अशरफ की रिपोर्ट। अरे भैया तुम्हें